Is it true that you were going to say no to this show? मुझे लगा मुझे नहीं बनना किसी की बहन बहन मैं नहीं बन रहा. I don't want this character. But it's only the importance of characters you understand. I mean, through this show. Recently read an interview of yours where you mentioned and you were very open about the fact that after Sada Haq, you had a low point in your life. उस टाइम mental health conversations इतनी open नहीं थी, पता ही नहीं था actually, to be honest. It really became a thing after Deepika Padukone, that whole thing happened and she started speaking about it. You know, when you are in it for the first time, you don't realize it. And I had no idea कि अच्छा ऐसा अगर होगा, ये symptoms होते हैं तो इसको ये depression बोलते हैं. So thankful to Deepika for that. Do you remember your first job? You know मेरा first job क्या था? I worked in a Yash Raj film. What? Yeah. So I was very happy कि oh, I got a part in a Yash Raj film. Hi, I'm Harshita Gaur and you're watching me on Bollywood Hungama. गौर से देखिए इस लड़की को, गौर से देखिए इस लड़की को, क्योंकि यही है वो जिसने सीजन 1 से सीजन 3 तक क्या कमाल का आर्क बनाया है अपने कैरेक्टर का. तो हर्षिता गौर, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल. I am very well, very happy, very feeling very content. Yeah. And yay, it's finally out. Oh my god. अच्छा, मुझे ना पहला सवाल यही पूछना है that how were you taking this secret in? कितने देर तक रखा होगा? ये secret तो हमारे लिए भी था. अच्छा. Honestly, it's not like when you were shooting, we knew कि exactly कब आने वाला है. But हाँ, obviously we got to know few months in advance. But exactly like fans, even we were like कि अरे कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. We also used to do that. But आते जाते लोग आपको पूछते थे? हाँ. Building में. It's a second. It's their second. It's not even the second dialogue. It's the first dialogue. हाँ. Probably hi is also later, and it's like कि अरे कब आ रहा है? They look at you and say कब आ रहा है? So, welcome to Bollywood Hungama, Harshita. We have loved you as Dimpy, Dimpy Pandit in Mirzapur, of course. मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, is it true that you were going to say no to this show? Yeah, but that, excuse me, in my defense, I did not know कि वो ये show क्या है और क्या, और तब OTT बहुत नया था. तो मतलब actually OTT नया क्या था, OTT की शुरुआत इस show से हो रही थी. वाह. तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या है, शोज क्या होते हैं, अच्छा सीरीज क्या होगी. और मुझे लगा मुझे नहीं बनना किसी की बहन मैं नहीं बन रहा. I don't want this character. But it's only the importance of characters you understand. I mean, through this show, I've understood क्योंकि it was one of the first shows on OTT. Yeah, I think like you mentioned, you know that यही एक show है that has also defined, you know, what OTT content should be. Even though we are very pissed off that it took 3 years, my God, for this to come as season 3. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है हर कैरेक्टर का, किसी से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं है क्योंकि अगर हमें कोई कैरेक्टर पसंद आने लग गए, बिल्कुल, तो फिर वो कब प्यार मत कीजिएगा किसी भी कैरेक्टर से. बट क्या आपको लगता है कि ये सही था 3 साल का ये जो वेट? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था. और गलती इसमें मतलब बिल्कुल सारी हमारी तो नहीं थी. इट इज लाइक 2 लॉकडाउन भी आए जिंदगी में. करेक्ट. तो उसकी वजह से हर चीज डिले हो जाती है और कोई डिले नहीं करना चाहता. हम खुद नहीं चाहते कि हम इतना टाइम लगाए आने में, बट इट वाज fortunate, unfortunate, I don't know that it took. So how was the process for you? Did you have to go back to look at season 1 and 2 to revise the character of Dimpy? नहीं, एक्चुअली वो वर्ल्ड जब आप शूट करने जाते हो तो वो क्योंकि हमारे डायरेक्टर, DOP, HOD सब सेम है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उस दुनिया में एंटर करते ही सब सेम है. तो आप मोहल्ले में गए हो और नेबर्स वही हैं सारे, तो इसलिए इतना ज़्यादा हिट बैक नहीं था. बट और बहुत इजी कर देते हैं वो प्रोसेस आपके लिए. पर हाँ, आई हैव अ डायरी फॉर एवरी कैरेक्टर दैट आई परफॉर्म. तो उसमें फिर देन आई गो बैक टू दोज पेजेस दैट आई हैड रिटन. उतना ही मेरा प्रिपरेशन होता है. टेल अस, नो, टेक अस थ्रू योर डायरी. क्या बैक स्टोरी है डिम्पी की? क्या करती है वो? व्हाट वाज योर थॉट अबाउट हर? एक्चुअली वेरी अर्ली जब मुझे कैरेक्टर बताया था तो मैंने हमेशा से सोचा था कि 2 भाई हैं डिम्पी के, गुड्डू और बबलू. तो किसी हम होते हैं ना कि किसी से हमारी ज्यादा लड़ाई होती है, किसी से हम ज्यादा क्लोज होते हैं. तो पता नहीं क्यों इवन बिफोर आई हैड मेट अर्ली, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मैं एंड में आई थी इस प्रोजेक्ट पे. आई वाज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड. और मैं जब ऐसे ही लिख रही थी तो आई फेल्ट लाइक पता नहीं क्यों डिम्पी
इज क्लोजर टू गुड्डू भैया, कि वो गुड्डू भैया उसको मस्ती कराते होंगे, हाँ. उसको, क्योंकि बबलू भैया वो पढ़ाई वाले की पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और गुड्डू भैया वुड बी लाइक कि अरे चलो जाके आइसक्रीम खाते हैं, जाके वो करते हैं. तो आई थिंक ऐसा ऐसा कुछ कुछ मेरी ऑब्वियसली बैक स्टोरी थी. ये मैं बता रही हूँ आज से 8 साल पहले, हाँ. जब स्टार्ट किया था. उसी की तरह बस ऐसी मैं डायरी में वो चीजें लिखती हूँ जो सीन का पार्ट नहीं है. वो जो अगर डिम्पी अगर आज उसको रॉबिन मिला है, हाँ. तो वो अपने हॉस्टल जाके अगर वो सो रही है तो उसने क्या लिखा होगा. तो वैसी कुछ चीजें हैं which are not part of the series but it just helps me. Definitely, I'm Yeah. sure it helps you in Yeah. build your character also, Yeah. right? तो आपको कैसा लग रहा है? How does this growth feel for you as Harshita when you see Dimpy's growth from season 1? जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि like as an actor you must have thought that मुझे बहन नहीं बनना है. But then now there are like these very important scenes that you are part of. Yeah. Do you feel you मैं have? ये बोलना चाहती हूँ कि बहन नहीं बनना से आई हैव ये एक बहुत 8 साल पहले की बात है. एक बहुत मैच्योरिश वे में मैं बहुत छोटी थी. आपको लगता है कि अरे मैंने अभी एक शो कर लिया है लीड में, तो और तब हमारी अंडरस्टैंडिंग वही होती है. नथिंग अगेंस्ट पीपल जो यू नो, आई एम वेरी हैप्पी लोग मुझे एक्चुअली गुड्डू भैया की बहन के नाम से इतना जानते हैं. पर वो ये सीरीज OTT ने हमें सिखाया कैरेक्टर्स की इम्पोर्टेंट. लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में 2 ही चीज़ें मोस्टली होती थी. कमिंग बैक टू माई ग्राफ, जैसे आप बात करिए, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि हमने एक ऐसी लड़की दिखाई जो कि स्ट्रॉन्ग है और तब से ओपिनियटेड भी है, क्योंकि अपने पापा की साइड पर रहती है वो, और उसको पता है कि ये गलत है ये सही है, मैं ये करूंगी ये नहीं करूंगी. लेकिन शी चूजेस नॉट टू पिक अप वायलेंस इन अ वायलेंट वर्ल्ड. मतलब ऐसी जगह जहां पर मैं गन नहीं उठाऊंगी लेकिन शायद मुझे देख के सामने वाला गोली मार सकता है. तो वो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कोई भी कैरेक्टर को देना. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. कि एक है जो मजबूरी में जिसने गन उठा के एंटर्ड इन द वायलेंस वर्ल्ड, एक है जो अपने डिसीजन पे स्टिक रह के वायलेंट नहीं होना चाहती है जी. सो दैट वे आई फील लाइक it's a beautiful graph. Definitely, you know? definitely. And then you see she trying so hard to have a normal life. Yeah. और वो normalcy के लिए वो लड़ रही है. तो ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है जिसे घर में शायद 2 भाई होंगे जो ऐसे चले गए and she still wants to have a normal life. So I feel very happy to be portraying that graph. Most of us love about Mirzapur is the great characters and every character having like these amazing stories to it. आपके लिए गुड्डू भैया यानी कि अली फजल के साथ बॉन्डिंग कैसी रही? How was it working with him? You have some amazing scenes with him as well. तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा. इनफैक्ट पहले मुझे याद है कि मैं आई वॉज वेरी इंटिमिडेटेड जस्ट बाय द थॉट ऑफ इट कि मैं मुझे जाके अली के साथ काम करना है, श्वेता के साथ काम करना है, क्योंकि मैंने इन लोगों को फिल्म्स में देखा है. एवरीवन हैड वर्कड इन फिल्म, वेदर इट्स श्रिया in Fan, Shweta in Masan, Ali in 3 Idiots, and Pankaj ji in so many other films. Vikrant, everybody I had seen working so good, you know. और I used to feel like कि अरे मतलब एक तो पता नहीं how will I be treated, and they're all you know biggies. पर मैं गई सेट पे एंड ऐसा लगा ही नहीं, लाइक अली अपनी वैन से निकल के आया और ऐसे करके डिम्पी एंड ही हग्ड मी एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक मैं बहुत टाइम से जानती हूँ उसको. तो बहुत अच्छा था. एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट ही इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी ऑन द ऑफ कैमरा आल्सो. ही इज वेरी केयरिंग एंड I can call him, Shweta, Gurupa, my director, my DOP, Sanjay sir, at any time, and they're all there for me. So, do you remember your first shot of Mirzapur? Yeah, that was my first shot. When वो जब season 1 में मेरा जो actually introduction है वो ही मेरा पहला shot था. तो वो श्रिया के साथ हम कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं और वो फिर भैया खड़े हैं. तो वो मेरा पहला दिन था, मेरा पहला शॉट था. Be honest, do you miss Vikrant and Shriya? Of course you do. मतलब आप रियल लाइफ में भी कर रहे हो उनको, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है. You spent such good moments with them, और उसके बाद भी बातचीत होती रही है. और एज कैरेक्टर तो आप ऑब्वियसली मिस करते हो. तो 100% जो भी मिर्जापुर से जाता है वो याद बड़ा आता है. So tell us what is it like on the sets जब
शूट कट होता है तो क्या माहौल होता है? हाउ आर यू गाइस लाइक टुगेदर? शीबा जी, ओ माय गॉड, व्हाट एन आई एक्टर! नो मैन, आई नो। मैंने उनका देखा था काम पहले भी, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम करते हुए ना, आप कभी कभार खो जाते हो और उन्हीं को देख रहे हो। मतलब यू आर इन द सीन बट आप उन्हीं को देखे जा रहे हो। लाइक शी इज दैट गुड एंड पावरफुल एज एन एक्टर बिकॉज शी इज जस्ट अ ब्लेसिंग टू हैव Do you have any अराउंड। fun stories that you can share about, the shooting? कुछ तो हुआ सेट पर? कुछ तो हुआ। ये वही वाली बात हो जाती है कि आपने मुझे पूछा कि अरे सीजन 1 में उस एपिसोड हाँ। में उस सीन में क्या होता हम है। भी याद ही कर रहे हैं, ओके दीदी, तुम्हारे इस इंटरव्यू के बाद वापस जाके देखना है मुझे सीजन 1 2 फिर 3 वापस देखना पड़ेगा, देखूंगी। फिर ज्यादा मजा आएगा। पर बहुत सारी चीजें होती थी ऐसी मस्ती वाली। तो ऐसे याद करके मुझे याद है सेकंड सीजन में मैं पूरा सीजन में जैसे गुड्डू भैया ऑन स्क्रीन लंगड़ा रहे थे, मैं ऑफ स्क्रीन लंगड़ा रही थी। तो मेरी बड़ी खातिरदारी की जाती थी। अगर बैठी हूँ कहीं पे तो किसी ने पानी दे दिया, किसी ने वो तो वैसे भी हो जाता है। जी, जी, बट जी। लाइक इवन पीपल अराउंड कि अलिया यू फाइन। Yeah. तो मतलब वो सब चीजें आई फील लाइक आई वाज पैम्पर्ड ऑन द सेट इवन मोर इन सीजन 2 बिकॉज आई वाज इंजर्ड। Yeah, I was going to ask you this. You were injured, huh? या And उसके बाद भी आपने, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तबीयत खराब थी, एंड नहीं, फिर मैं इंजर्ड, मेरी नी इंजरी हुई थी। मुझे okay. मेनिस्कस टेयर था, मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था। लेकिन जिस दिन एक्शन शूट करना था उस रात को मैं बीमार हो गई, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी ओह। बहुत ज्यादा। तो मुझे सुबह 6:30 बजे सेट पे पहुंचना था, मैं 11 बजे पहुंची हूँ। तो वो एक बहादुरी वाला किस्सा है But मेरा। that must have really bothered you ना, कि यार इतना important shoot है। What अरे was going मैं through your mind? तो ऐसा हो गया था कि मुझे लगा था कि मैं इंजरी के बारे में भी किसी को बताऊंगी नहीं, वो तो पता लग जाता है ऑब्वियसली। बट जब 2 हफ्ते पहले ही हुई थी इंजरी, मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि व्हाट इफ मेरा सीन निकाल देगा अगर ये वाला, तो मुझे ये वाला सीन करना ही शूट। तो वैसा था मेरा Oh थॉट। God, ये तो अलग Yeah. डेडिकेशन है। My God. हाँ मतलब हाँ यार, डेडिकेशन है। Give yourself credit Yeah, for sure. yeah. So now when have you gone back to see that scene? जिसमें या तो कैसा लगता है? Like what are the memories? that मुझे you तो think? याद आता है क्योंकि वो एक जगह पे वो रद्दी वाले को मेरा सर ऐसे उस पे मारना था पेड़ पे जहां पर पैडिंग की हुई थी। Okay. तो वो लेकिन उसने मार्क हिट नहीं किया, तो मुझे एक्चुअली में सर पे भी लग गई। तो वाइल शूटिंग ऑल्सो मुझे काफी चोटें लगी और हर शॉट के बीच में मैं बेहोश हो जाती थी, फिर मुझे इलेक्ट्रॉल पिला रहे हैं, कोई मेरा सर दबा रहा है। तो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो हैव हैपेंड। तो मैं जब भी वो सीन्स देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मैं नहीं हूँ। मैं एग्जैक्ट वो सीन में तो मैं जेन्युइनली आई फील लाइक दिस इज नॉट मी, दिस इज सम एनर्जी ऑफ डू और डाई दैट वाज इन मी दैट डे, कि जिसने बोला करना ही है। Wow, yeah, Harshita, Yeah. that's amazing. That's a lot of dedication for So sure. टुडे अगर मुझे कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती है ना सिचुएशन लाइफ की, तो आई एक्चुअली गो बैक टू दैट सिचुएशन कि अरे कि वो कर लिया तो आई थिंक मैं ये भी कर लूंगी। तो कमाल वो है। मुझे वो हिम्मत देता है। तो ये बताएं दैट हमारे लिए तो मतलब 3 साल एक बहुत लंबा गैप था, बट एज एन एक्टर फॉर यू, क्योंकि आप लोग की शूटिंग चल रही थी, व्हाट वर दीज 3 years फॉर यू लाइक? व्हाट वर यू डूइंग? हाउ वाज लाइफ इन दोज 3 years? सो 2 years तो वाज हाँ, लॉकडाउन, लॉकडाउन। कुछ नहीं किया, घर पे मतलब थी एंड थैंकफुली बीमार नहीं पड़ी। जी। आई फील लाइक इट्स खैर वो वाली 2 साल बहुत टफ थे बहुत लोगों के लिए। तो वो 2 साल के बाद देन आई ऑल्सो शॉट समथिंग इन 2022, एक दूसरा शो मैंने शूट किया था। फिर आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन माई पर्सनल लाइफ, ओके। एंड उसके बाद मिर्जापुर 3 की शूट स्टार्ट हुई। तो डिम्पी के कैरेक्टर में आते ही इट रियली हेल्प मी पुल मी, इट दैट कैरेक्टर हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दैट फेज from my personal life. Yeah, in fact, I had recently read an interview of yours where you mentioned and you were very open about the fact that after Sada Haq, you had a low point in your life. Yeah. How did you overcome that? And do you want to share ki, like, Sure. I mean 2017 में हुआ था, just before I started shooting for Mirzapur. मैं बॉम्बे में काम के साथ आई थी। Okay. तो मुझे पता नहीं था कि जब लोगों के पास काम नहीं होता तो बॉम्बे में क्या करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखा ही नहीं था वो टाइम। आई स्टार्टेड शूटिंग फ्रॉम डे 1 Right. और 2.5 साल तक मैंने 14 से 20 घंटे काम किया। तो सडनली जब काम नहीं था तो थोड़ी देर तक तो लगा कि अभी हो जाएगा। फिर एक फिल्म भी आई थी, वो चली गई मेरे हाथ से। आई वाज शॉट फॉर दैट फिल्म फॉर 2 weeks
एंड फिर उनको कुछ लगा कि यू नो दे वांटेड समबडी एल्स, बट एनीवे कौन सी फिल्म थी ये? इट वाज अ साउथ फिल्म. अच्छा. या आई डोंट वांट टू नेम इट. Okay, sure, sure. तो खैर, तो उसमें फिर आप, मुझे पता ही नहीं था, तो आई वाज नॉट गोइंग आउट माय हाउस फॉर 4 days. आई वाज नॉट स्पीकिंग टू एनीवन. और वो उस टाइम मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशंस इतनी ओपन नहीं थी, पता ही नहीं था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. कुछ कोई आसपास कॉन्वर्सेशन नहीं थी. इट रियली बिकेम अ थिंग आफ्टर दीपिका पादुकोण, दैट होल थिंग हैपेंड एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इट. उससे पहले तक कुछ नहीं वो पता था, एंड मुझे खुद नहीं पता था. यू नो, व्हेन यू आर इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू डोंट रियलाइज इट. एंड आई हैड नो आइडिया कि अच्छा ऐसा अगर होगा, ये सिम्टम्स होते हैं तो इसको ये डिप्रेशन बोलते हैं. तो पता ही नहीं था. तो आई लिटरली had some, I used to just cry all the time. I was in the house for 4 days. I was not going out. Then one day my neighbor auntie had a key, so she came inside and she started talking to me, and I started howling and crying, and then we sort of, उस time therapist पे जाने का भी कुछ दिमाग में नहीं आया. But I do remember that I happened to do this workshop, Atul Mongia's, and there I shared and opened up a lot, and that really helped me come out of it. And then when I understood mental health, therapist, and then the conversations happened, then when you look back, then I realized that that phase was very scary, because I used to stay alone, and I literally locked myself up, and I was just in my dream world, and I would just keep crying. So हाँ, अब पता है. अब अगर थोड़ा सा भी आप वैसा फील करोगे, यू नो कि ये सिम्टम्स हैं, या किसी और को आप देखोगे तो आप उसको बोल सकते हो. एंड दैट्स व्हाई आई फील so happy that today the conversations have become so much more open and people understand. Yeah. अगर आपको कहीं बॉडी में पेन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उस पेन का इलाज भी है, या वो पेन को पेन कहते हैं, तो वो अब पता है लोगों को, which is I think a great thing, and so thankful to Deepika for that. I'm really glad that you're speaking about it, because as actors, because there's this need to always be in the limelight, Yeah. because that's what y'all are struggling or working hard for, right? So what is this one thing you would like to tell for all the actors who are trying to make it big, लेकिन failures ज़्यादा नजर आते हैं more than getting chances? क्या मुझे ऐसा लगता है कि ना, स्टार्ट ये सोच के मत करो कि बिग क्या है. बिग बहुत फ्लीटिंग है. बिग इज नॉट अ, वो कुछ कॉन्क्रीट है ही नहीं. आपके दिमाग में जब बिग होगा, आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको लगेगा अरे वो बिग है. Yeah. तो बिग इज नथिंग, बट आई फील लाइक कि हाँ, 4-5 चीजें होनी चाहिए which if you have in the field that you're working, you can consider yourself successful. पर ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है ना कभी. मेरा दिस इज माई सेल्फ लिव्ड जर्नी. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई विल ओनली गो टू बॉम्बे एंड ओनली डू अ यश राज और धर्मा फिल्म. यू नो, इट इज अ, वो आप खुद पे भी डालते हो, बिकॉज लोगों ने सेट कर दिए आपके लिए स्टैंडर्ड्स कि अगर आप ये कर रहे होगे तभी आप कंसिडर कर सकते हो अपने आप को सक्सेसफुल. पर अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर वो नहीं हो, तो आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स, सी पीपल हु गेट इट great, but the problem is I know people who've also done a Yash Raj film, but today they don't feel successful. That's not the point. So for example, अगर एक पैरामीटर होता कि आपने ये वाली फिल्म कर ली, तब की बात कर रही, तब OTT नहीं था, कि ये कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो. Right. अब कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया, कोई वहां तक पहुंच गया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पाया. तो बेसिकली हमारी नजर में तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए ना, पर वो भी नहीं है. तो कोई एक पॉइंट नहीं है. सो आई फील लाइक इफ यू हैव 5 थिंग्स literally on your hand, like if you wake up every day and going to work that you like to do, you're passionate about it, if you have enough resources for your daily needs, and you're not financially dependent on anyone, if you have, I would like to say call it 5 friends, but even if you have one person in your life who you can call at any given time in the day or night, and that person will be there for you, and if you sleep in the night thinking about 5 things that you're grateful for, which is as lame as कि यार मैं आज कहीं गया जहाँ parking नहीं मिलती, मुझे parking मिल गई. So if you're grateful, if you have 5 friends, if you are passionate to do whatever you're going for and you like it, and if you have basic resources, I think that's success. Because then everything else will fall into place. So आएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा. So I feel अगर हम सक्सेस को अगर ऐसे डिफाइन कर दें, then it will be easier for people to jump into things that they like without fearing it too much.
without taking the pressure of it. Do you feel that social media has added pressure? Have you ever been for auditions or been spoken about on numbers on Instagram कि Yes. कितने followers है, इतने कम है तो फिर नहीं होगा? हाँ, मुझे एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे फॉलोअर्स कम हैं या ज़्यादा हैं इसलिए हमने तुम्हें लिया है, बट आई रिमेंबर बिग कास्टिंग डायरेक्टर्स टेलिंग मी दैट यार इंस्टाग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इंस्टाग्राम के नंबर्स मैटर करते हैं. तो ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है. तो हाँ वो और फिर मुझे लगता है कि जो लोग अभी आ रहे हैं उन पे है सोशल मीडिया का काफ़ी प्रेशर, विच आई विल नॉट डिनाई. हाफ द टाइम देयर थिंकिंग कि सोशल मीडिया पे ध्यान दें कि वर्कशॉप करके एक्टिंग पे ध्यान दें, तो वो है चीज़. बट एज लॉन्ग एज सी इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो हम बात करते हैं वो कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते. अब ऐसा नहीं हो सकता, या तो फिर यू आर सो कंटेंट एंड यू ओनली वांट टू फोकस ऑन योर एक्टिंग एंड देन यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, आप हो ही नहीं उस पर, तो आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे रहे हो, ग्रेट. डोंट क्रिब अबाउट द फैक्ट कि यार मैं इंस्टाग्राम मुझसे संभलता नहीं है, मैं नहीं हूँ इस पे. जो हैं वो भी ये क्रिब ना करें. इफ़ यू जस्ट, अगर आप एक्टर हो, आप डांस सीखते हो, आप एक्टिंग की वर्कशॉप करते हो, आप व्हाटएवर लाइक कुछ भी और चीज़ें करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम को एक पार्ट समझ लो ना उसका, कि मुझे इंस्टाग्राम पे इसलिए होना है ताकि पीपल हु आर फॉलोइंग मी, there's a small thing, it's okay if I give them some entertainment if you're not too mad about if you're an actor. But don't you think that's unfair? Like, you're an actor, right? And your main love is acting. Yeah. So how does it matter? Why is somebody telling you that आप Instagram पे ध्यान दीजिए? ये तो सैड है, ये तो सैड रियलिटी है. बट मैं बोल रही हूँ कि इसको डोंट टेक इट इन ना. अगर मुझे जैसे 2 साल पहले बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, अगर मेरा फोकस वही हो जाता तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे आई हैव टू बी सो एक्टिव, मेरे अभी 3-4 मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए, और फिर मैं ये सोच रही होती कि यार कैसे बढ़ाए जाएं. तो वो नहीं. इट्स ऑल्सो लाइक 100 पीपल विल टेल यू 100 थिंग्स. यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए क्या वर्क करता है. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आई कांट बी लाइक कि मैं अपना काम छोड़ दूं, मैं वर्कशॉप छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं, और मैं सिर्फ अब इंस्टाग्राम पे बैठ जाऊं कि मुझे इंस्टाग्राम को मिलियंस में लेके जाना है. I thought, no, let me do something a little extra, which comes naturally to me, which is not made up. और वो naturally में मैं काम करती हूँ, 10% एफर्ट बढ़ा देती हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए, और बाकी मैं अपना काम जो कर रही थी वो मैं करती रहती हूँ, अपनी वर्कशॉप्स अपनी ये वो मैं करती रहती हूँ. सो आई ओनली थॉट कि ओके थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट डाल देते हैं, यू डोंट हैव टू गो मैड अबाउट इट. सो I am a person who really wants to balance things out in my life. That's nice. So as long as you want to balance things out, great. But you can't take the pressure of one thing. You can't. Even if you're not on Instagram, you can't take the pressure कि मैं नहीं हूँ Instagram पे, मैं तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ. उसका भी pressure नहीं ले सकते हो आप, because everything is a part of life. Not one thing is life. Lovely, lovely. Do you remember your first job? And what did you get paid? मेरा first job क्या था? I worked in a Yashraj film. What? Yeah. बहुत पहले एक फिल्म आई थी, बेवकूफियाँ. हाँ. आयुष्मान खुराना एंड सोनम कपूर. तो मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे, और मुझे उन्होंने ऑडिशन लिया था रिपोर्टर का. एक सीन है जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, और एक रिपोर्टर को एक लंबा पैराग्राफ है जो डिलीवर करना है. सो आई गिव द ऑडिशन. मतलब I had done it from college only and I sent it, and they called and they're like, अरे you are very good because you can speak the entire dialogue in one go. तो आप and दिल्ली में शूट हो रही थी. So I was very happy कि oh I got a part in a Yash Raj film, and then obviously that part got, वो पार्ट ही क्या था, वो तो हाफ डे का रोल था. हाफ डे भी नहीं, वो हम हाफ डे के लिए थे, but basically it was a one dialogue thing, and that got cut. And I don't know if people can really pointed out, एक सीन है जिसमें पीछे दिख रही हूँ मैं. अच्छा. Yeah. So that was literally my first acting job on camera. और कितने पैसे मिले थे इसके लिए? ऐसे तो मुझे लिटरली याद नहीं, पर ऐसे कुछ 1000 रुपए मिले होंगे. Oh my God, our family. What I remember is the amount of like when I was on set, it didn't feel like कि मैं कुछ
छोटा या काम कर रही हूँ और आयुष्मान एंड kudos to those people because literally the cut happened Yeah. and Nupur was a director और हम स्क्रीन के पीछे आके बैठे थे and I remember Ayushman saying hi to me and I said hi. He said Ayushman Khurrana. I said Harshita Gaur. He said nice name, strong. And then Sonam came and I said hi Harshita and she said hi, I'm Sonam. And I felt like oh okay, people do introduce themselves Nice. because मुझे लगा कि तुम्हें क्या जरूरत है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, तुम्हें शायद होगा कि हम you should know who I am. Right. But no, I think the way they were with us, it just felt like so normal that we Yeah. all are doing one scene and we all are equals, and that also comes from people. And I called up mom and I said, "Mama, जो भी बोलते हैं ना इंडस्ट्री के बारे में वो बकवास बोल रहे हैं. I'm working with these people. ये तो बहुत sweet है, ये तो बहुत down to earth है." And both of them like really sweet and really down to earth. And I was very happy. I said, you know, Ayushman Khurrana said your name is very nice. So good job, mom. So good job. अभी इतने सालों में यही थॉट है अभी भी आपका डाउन टू अर्थ इंडस्ट्री? बहुत सारे लोग हैं और सब लोग सेम नहीं होते, बट आई एम सो ग्लैड टू हैव कम अक्रॉस पीपल who I have looked up to, and when I met them, I've only been glad because the way that I've been treated by them is I'll always, I mean, I want to be that person. I like how you are in character. डिम्पी मतलब वो वकील की बेटी जैसी बात कर रही हो आप, एकदम वकालत सही निकल रहा है. पर यार सच में I have not come across a single person जिससे मुझे लगा कि अरे यार he's or she's trying to be you know snobby, और मेरे साथ नहीं हुआ. Maybe होगा तो मैं कभी किसी और इंटरव्यू में आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ. What do you feel about the chemistry between Dimpy and Robin? Somebody had written, I think they are lotus in the mud. Oh, you know, their love story is like it really blooms like lotus in the in Mirzapur's world. Yeah. So I think that's the apt thing for both of them, and I feel like they're very sweet. Yeah, I look at them and I'm like, oh, cute. You know, आपने जैसे कहा कि OTT बस शुरू हो रहा था and मिर्जापुर came in and you know what's the word? भौकाल मच गया था. Apart from मिर्जापुर एक और सीरीज थी जिसके बारे में बहुत तारीफ होती है, and that was Sacred Games. You have been fortunate enough to be a part of Sacred Games as well. Yeah. Season 2 में I was part of Sacred Games for a small part again. But again उसमें वो part start होता है और जितने time के लिए होता है, 1-2 scene के लिए, उसके बाद the part dies. It was a great mahal on set. I mean, I got an opportunity to work with the Anurag Kashyap, and the way he directs, I remember this one scene happening. I don't know if people will remember it, but scene start वहां से होना था. The camera was जब डोर खुलेगा तब सीन स्टार्ट होना था, और एक कैमरा अंदर था, एक कैमरा बाहर था. और मुझे आई थिंक अनुराग जस्ट टोल्ड मी कि just feel the character so much even if the camera is not on you right now. And again very initial days, तो I remember action से मतलब वो जब रोलिंग साउंड ये सब हो रहा था, और एक्शन से जस्ट पहले वाला पार्ट में भी whatever I did inside there was, because the camera inside also, वो capture करके that part has also been placed. तो I don't know how that man functions, because he captures things which you will feel like अरे ये तो अभी scene start ही नहीं हुआ है. Scene के पहले वाले भी बड़े important moments होते हैं जो कि वो कैप्चर कर लेते हैं. और जब मैंने वो सीन देखा, मैंने बोला this is so apt and looks so natural, because in my head the action hasn't happened. Yeah. It's me who did something for the scene, and that got captured. So nice. I think that was a beautiful moment, and I'm glad that it got captured. Harshita, I love the fact that you know you're part of shows जिसमें बंदूकें होनी चाहिए, violence होना चाहिए, गाली गलौज होनी चाहिए. तो ये क्राइटेरिया तो नहीं बना रहे हो आप अभी आगे की? यार नहीं, मैं ये क्राइटेरिया, पर ये देखो उन सब शोज में मैं ही अकेली ऐसी लड़की हूँ, ऐसा किरदार हूँ जो कि
बिल्कुल वायलेंस की साइड पर नहीं है, हाँ। लेकिन वो दिखाता है कि देखो वायलेंस वर्ल्ड में भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, आई एम द फ्लैग बेयरर ऑफ दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट सीजन? कुछ कुछ मालूम है, कुछ आइडिया? बस पलक झपकाइए, आ जाएगा। ओह प्लीज दीदी, पलक झपकाते झपकाते तो 3 साल हो गए थे। नहीं बट पूरी कोशिश है। मतलब आप बोल रहे हो कि सीजन चाहिए, ऑफ कोर्स। ठीक है। अगर इस वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया कि सीजन 4 चाहिए तो फटाफट आ जाएगा। गाइस, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। Hi, I'm Harshita Gaur and you're watching me on Bollywood Hangama.